Hello dear students, today we are going to discuss about a very important electrical device which is called as transformer. So in this video we are going to learn about the definition of transformer, what is the principle behind it and how does it works. So what is transformer? It is an electrical device for converting an alternating current at low voltage into that at high voltage. क्लियरली इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी आपको लो वोल्टेज मिली हुई है, सपोज दिस इज लो वोल्टेज आ रही है, यहां पर लो वोल्टेज, और इस लो वोल्टेज को आपको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको? हाई वोल्टेज में। यहां पर आपको हाई वोल्टेज, या फिर इसका उल्टा कि हाई टू लो, दिस इज लो टू हाई, और वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज with the help of a device called transformer. अगर आप इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज दिस इज माय इनपुट वोल्टेज, अगर ये मेरी इनपुट वोल्टेज है और ये मेरी आउटपुट वोल्टेज है, इन दैट केस दैट ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं उसको? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एंड इफ द आउटपुट वोल्टेज, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज हाई है, if this is your input voltage and this is your output voltage, in that case your transformer is called as step down transformer. So basically we can change the high voltage into low voltage and low voltage into high voltage with the help of transformer. How we can convert this high voltage into low voltage and low voltage into high voltage, that we'll see after seeing the principle. What is the principle behind the transformer? It works on the principle of mutual induction. That is, when a changing current is passed through one of the two inductively coupled coil and induced EMF is set up in the other coil. क्या हो रहा होता है यहाँ पे? Here we are having a core, एक soft iron की core होती है, and you know that why we use a soft iron core. हमने क्या काम किया? Here we are having a coil which is having some number of turns, and at this side also we are having a coil with different number of turns from the first one. Suppose we are providing an input voltage over here, this is suppose input voltage, and here we are getting an output voltage. In this case what happens is we are providing the input AC voltage, और इनपुट एसी कैसी होती है? वेरिंग होती है, चेंजिंग होती है। अगर यहाँ पर चेंजिंग करंट मेरा पास होगा तो उस चेंजिंग करंट की वजह से इस कॉइल, इस सॉफ्ट आयरन कोर में एक ईएमएफ, एक फ्लक्स इंड्यूस होगा। दैट फ्लक्स विल फ्लो फ्रॉम हियर एंड इट विल मूव टू योर आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट वाली कॉइल में, यानी कि आपकी प्राइमरी कॉइल में अगर आपने फ्लक्स को चेंज किया तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि सेकेंडरी कॉइल में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको चेंज इन फ्लक्स देखने को मिलेगा, और उसी की वजह से इन दोनों एंड्स पर एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है जो हमें आउटपुट के तरीके से मिल रहा होता है। So basically it works on the principle of mutual induction. When the changing current is passed through one of the two inductively coupled coil and induced EMF is set up in the other coil. How does a transformer looks? This is a transformer core. Here we are having primary winding. What do we mean by primary winding over here? Primary winding means the number of turns. These are the number of turns as you can see over here, right? And here we are having secondary winding. Suppose the number of winding in primary is NP and the number of winding is in secondary is NS. Here we apply a primary voltage. It is also called as input voltage. And at the other end, we get the output voltage, and it is also called as secondary voltage. Clear?
तो ये जो भी हमारा प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा वो फ्लक्स हमारा पास करेगा किसके पास, सेकेंडरी के पास। और जब ये सेकेंडरी के पास करेगा तो सेकेंडरी के पास करने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें चेंज इन फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब एज द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी it generates a magnetic flux in the core which passes through the secondary. This changing flux set up an induced EMF. यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, induced EMF देखने को मिलेगा in the secondary. Clear? Due to this induced EMF we got the output voltage over here. Now we were having two types of transformer. One was step up, कि भैया वोल्टेज को अगर मुझे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, आउटपुट वोल्टेज मुझे इनपुट वोल्टेज से ज्यादा चाहिए, इन दैट केस सेकेंडरी टर्न्स जो होने चाहिए वो प्राइमरी टर्न से बड़े होने चाहिए। स्टेप डाउन के केस में क्या होना चाहिए, स्टेप डाउन के केस में जो भी आपकी सेकेंडरी टर्न्स हैं वो सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी टर्न से कम होने चाहिए। तो सिंपल सी बात ये, हम इस ट्रांसफार्मर को दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर मैं इनपुट यहां पर दे दूंगा, जैसे यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर मेरे कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्राइमरी वाला बना दूं मैं इसको, मतलब यहां से इनपुट दूं और यहां से आउटपुट लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से इनपुट दूं और यहां से आउटपुट लूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स जहां पर ज्यादा हैं वहां अगर मैंने प्राइमरी सेटअप रखा है या इनपुट दे रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलेगा। और अगर मैंने जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है वहां से अगर मैंने इनपुट दिया है और जहां पर मैं आउटपुट ले रहा हूं वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो मुझे फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स मुझे ज्यादा मिलेगा। बिकॉज ई का जो हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, और फाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह पर डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा। अगर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो सपोज अगर मैं ये ईपी लिख रहा हूं, प्राइमरी साइड का ईएमएफ लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा एनपी डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। और यहां पर अगर हम एंगल देखेंगे तो एंगल हमें 0 डिग्री ही मिलेगा। अगर मैं आउटपुट की डायरेक्शन में वोल्टेज देखने की कोशिश करूं तो ई एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस ऑफ एन एस डी बाई डी टी ऑफ, ये कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। राइट, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है वही मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां पर अपीयर हो रही है कि नहीं। सो इफ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, what I can do is if I'll divide both these equations, अगर मैं इन दोनों equations को divide करूंगा तो divide करने पर मुझे क्या मिलेगा देखिएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं EP is equal to NP with negative sign, D फाई लिख देते हैं इसको बाई डी टी, और यहां पर ई एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगा, माइनस ऑफ एन एस डी फाई बाई डी टी। यही दो इक्वेशन मिलेगी, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इसी तरीके की दो इक्वेशंस मिलेंगी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो क्या देखने को मिलेगा मुझे, EP upon ES and this will be equal to NP upon NS, right? So this is the relation between number of turns। तो सिंपल सी बात, अगर NP बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये रेशियो बड़ा हो जाएगा, इसको ES से आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो आपको EP की वैल्यू बड़ी मिलेगी, मतलब प्राइमरी साइड में आपकी वोल्टेज ज्यादा होगी। तो जो भी वोल्टेज का डिफरेंस है, जो भी वोल्टेजेस का रेशियो है, वो रेशियो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहां पर मैं सीधे सीधे बोल पाऊंगा कि अगर NP ग्रेटर देन NS हो गया देन EP विल बी ग्रेटर देन ES देखने को मिलेगा, और अगर NS ग्रेटर हो गया NP से तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ES ग्रेटर देन EP देखने को मिलेगा। तो अगर EP बड़ा हो गया तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
और अगर ES बड़ा हो गया तो ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पर अगर मैं रिलेशन देखने की कोशिश करूं कि अगर इफ द ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब नो एनर्जी लॉस, किसी भी तरीके का कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो इन दैट केस क्या देखने को मिलता है हमें कि जो भी आप इनपुट पावर देंगे वो आपकी आउटपुट पावर के बराबर मिलेगा। इनपुट पावर कितनी दी आपने? आपने यहां पर आईपी करंट फ्लो कराया और ईपी आपने वोल्टेज दे दी, यहां पर आपने ईएस वोल्टेज दे दी और आईएस आपको करंट मिल रहा है। तो सिंपल सी बात, मैं यहां पर अगर इनपुट पावर लिखूंगा तो यो क्या हो जाएगी, आईपी इंटू ईपी, दिस विल बी इक्वल टू आईएस इंटू ईएस, ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर मैं रिलेशन देखूं तो ईपी अपॉन ईएस की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी मुझे, आई एस अपॉन आई पी, ऐसा ही देखने को मिलेगा। और इस रिलेशन को और इस वाले रिलेशन को अगर हम देखें ए और बी को, तो मुझे एक रिजल्ट मिल गया क्या कि ईपी अपॉन ईएस जो है वो आई एस अपॉन आई पी के बराबर होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू एनपी अपॉन एन एस मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस में ही वैलिड है। कैसे केस में वैलिड है? आइडियल केस में। अगर ये केस हमारा आइडियल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ efficiency. And what is the formula of efficiency? Neta is equal to, if transformer is not ideal, is not ideal, in that case what we'll find, neta is equal to output power upon input power into 100, ऐसे ही रिलेशन देखने को मिलता है। सो व्हाट इज आउटपुट पावर? आउटपुट पावर इज ई एस आई एस, व्हाट इज इनपुट पावर? ईपी आई पी इंटू 100। इस फॉर्मूले को यूज करके हम ई एस और ईपी और आई एस और आईपी में रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब अभी तो हमारी इफिशियंसी 100 थी, आइडियल केस में, आइडियल केस में क्या देखने को मिल रहा था हमें, आइडियल केस मतलब नीटा इज इक्वल टू 100%। और अगर नीटा को अगर मैं 100 रख दूंगा तो ई एस आई एस अपॉन ई पी आई पी इंटू 100, ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया था, तो ई पी बाई ई एस की जो वैल्यू मिली थी वो मुझे आई एस अपॉन आई पी देखने को मिली थी, यही रिलेशन मुझे देखने को मिला था। लेकिन अगर वहां पर किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस देखने को मिलता है आपको, तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। किसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको? एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉस होगा कहां, क्या क्या तरीके होंगे जहां पर आपको ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा? तो हियर आर सम फ्यू लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। नंबर वन इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस मींस, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप वाइंडिंग कर रहे हैं वो वाइंडिंग किसकी कर रहे हैं? आप कॉपर की वाइंडिंग कर रहे हैं, इंसुलेटेड कॉपर की वाइंडिंग कर रहे हैं। तो जो भी आप ये कॉपर की वाइंडिंग करेंगे तो ये कॉपर की वाइंडिंग की वजह से ये हीटअप होगा, और हीटअप होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको कॉपर लॉस देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर। भाई सिंपल सी बात है कि अगर वहां से करंट पास होगा तो करंट पास होने की वजह से जो हमें लॉस देखने को मिलेगा वो लॉस हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा। एडी करंट्स की अगर हम बात करें तो एडी करंट्स के केस में क्या होगा कि एडी करंट लॉस की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स हम इंड्यूस कराते हैं तो उसकी वजह से एडी करंट्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये मेटेलिक सॉलिड है, दिस इज मेटेलिक सॉलिड। और मेटेलिक सॉलिड होने की वजह से यहाँ पर हमें एडी करंट देखने को मिलेंगे। और एडी करंट अगर हमें देखने को मिलेंगे तो इस एडी करंट की वजह से क्या होगा, हीटिंग होगी, हीटिंग ऑफ
ट्रांसफॉर्मर कोर, जो भी आपकी कोर है ट्रांसफॉर्मर की, वो कोर हीट हो जाएगी और उस हीट की वजह से आपको जो लॉस देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड एडी करंट लॉस। नेक्स्ट इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि यहां पर बार बार आप फ्लक्स को चेंज करा रहे हैं, तो वो पहले मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो लॉस देखने को मिलेगा वो लॉस आपको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। तो ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन and demagnetization of iron core, energy will be lost. Next is flux leakage. फ्लक्स लीकेज का क्या मतलब है? फ्लक्स लीकेज का मतलब है कि जब कभी भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स पास कराएंगे इसके थ्रू, किसके थ्रू, अपने ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो ये जरूरी थोड़ी है कि सारा का सारा फ्लक्स आपके इस आयरन कोर के थ्रू पास कर जाए। बहुत सारा हो सकता है कि यहां से आपने सपोज 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, 100 में से इसके पास तक 80 पहुंची, तो ऑब्वियस सी बात है जो 20 फील्ड लाइंस होंगी, उस 20 फील्ड लाइंस की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? लॉस देखने को मिलेगा। तो ये लॉस जो है, ये लॉस कैसे होता है? दिस लॉस इज ड्यू टू, क्या लिख सकते हैं यहां पे, इट इज प्रोड्यूस्ड when the full magnetic flux do not pass through the secondary coil। तो इस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इस केस में भी हमें लॉस देखने को मिलेगा। हमिंग लॉस मतलब ट्रांसफार्मर वर्क करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है, और उस साउंड के प्रोडक्शन की वजह से जो लॉस आपको देखने को मिलेगा वो हमिंग लॉस देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूले यही अप्लाई करना है, दिस इज द फॉर्मूला, अगर आइडियल केस है तो, और अगर आइडियल केस नहीं है तो उस केस में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करना है। In the next video, we'll see few numericals on transformer so that we can have better understanding how the numericals of transformer will be there. And it is a very important topic. Just go through it very carefully. So that's all for today. Thank you so much and God bless you all.